خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 24 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں قصیدہ کا، جو مرزا محمد رفیع سودا کا لکھا ہوا قصیدہ ہے. قصیدہ اردو ادب کی بہت مشہور و مقبول صنف سخن ہے. شروعات سے ہی قصیدہ اردو ادب میں رائج ہے اور بہت سارے شعراء نے قصیدہ میں اپنی ہاتھ آزمائی کی ہے. قصیدہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی شاعری جو کسی کی تعریف یا برائی بیان کرے. قصیدہ کو شروعات کے اندر تعریف اور برائی دونوں معنوں میں لیا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے قصیدہ صرف تعریف کی شاعری بن کے رہ گیا. تعریف کے لیے یہی قصیدہ جانا جانے لگا. قصیدے کے اندر وقت کے حاکموں کی، بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی، نوابوں کی، زمینداروں وغیرہ کی تعریفیں کی جاتی تھی تاکہ ان سے کچھ انعام و اکرامات وغیرہ حاصل کیا جا سکے. یہاں پر آپ کو قصیدے کے فن سے تعارف کرایا جائے گا، ساتھ ہی محمد رفیع سودا سے بھی آپ کا تعارف کرایا جائے گا. آپ کی زندگانی کے حوالے سے مختصر معلومات یہاں پر دی گئی ہے، ساتھ ہی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کے حوالے سے بھی مختصر معلومات یہاں پر دی گئی ہے، جس کا ہم مطالعہ کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. مرزا محمد رفیع سودا. مرزا محمد رفیع آپ کا نام تھا اور سودا آپ کا تخلص تھا. 1713 میں دہلی میں آپ پیدا ہوئے اور ان کے آباء و اجداد کا کابل سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں ہی بس گئے تھے. سودا کے والد مرزا محمد شفیع سودا ایک سوداگر تھے اور سودا نے قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی. اس وقت جو یہ سن دیا ہے 1713 کے آس پاس، 1700 کے آس پاس یہ رواج تھا کہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اور زیادہ تر جو شروعاتی تعلیم ہوتی تھی وہ گھر پر ہی ہوا کرتی تھی. جو والدین ہیں وہی بچے کی تربیت کے اوپر گھر پر ہی دھیان دیا کرتے تھے. تو ان کی بھی جو رواج تھے، جو طریقہ تھا اس وقت، اسی انداز میں تعلیم ہوئی اور پھر عربی اور فارسی کی آپ نے تعلیم حاصل کی. عربی اور فارسی کی تعلیم اس وقت مکمل سمجھی جاتی تھی کہ اس کے علم حاصل کر لیا تو وہ سب کچھ جاننے والا بن جاتا تھا. روزگار کی تلاش میں انہوں نے فوج میں نوکری کر لی اور سپاہی ہو گئے. آپ کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ بھی سپاہ گیری تھا. آپ کے جو والدین تھے، اجداد تھے، وہ بھی فوج سے تعلق رکھتے تھے. تو سپاہ گیری آپ کا خاندانی پیشہ تھا، تو آپ نے بھی روزگار کی تلاش میں سپاہی کی نوکری کر لی، لیکن کچھ وقت تک ہی یہاں پر رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی نوکری بدل لی، مگر جلد ہی ملازمت سے الگ ہو گئے. سودا بچپن ہی سے ذہین اور موزوں طبع تھے. بچپن سے ہی بہت ذہانت کے نشانات آپ کے اندر دکھ گئے تھے، عقل مندی آپ میں دکھ گئی تھی. کچھ عرصہ شاہ حاتم کے شاگرد رہے. اپنی ذہانت کی وجہ جلد نام پیدا کیا، مشہور ہو گئے بہت جلدی. دہلی کے بادشاہ شاہ عالم آفتاب بھی سودا سے اصلاح لیا کرتے تھے. اتنے مشہور ہو گئے کہ شعر و شاعری کے اندر وقت کے جو بادشاہ ہیں وہ تک آپ کو بلا کر آپ سے اصلاح لیا کرتے تھے، اپنے شعر و شاعری کے اوپر آپ کی رائے لیا کرتے تھے. تو استاد یہ کئی حکیموں کے اس وقت کے ہو گئے تھے. سودا کی شہرت سن کر نواب شجاع الدولہ نے انہیں لکھنؤ آنے کی دعوت دی. ریاست اودھ کے نواب شجاع الدولہ تھے اور بہت بڑے نواب تھے اور بہت بڑی ریاست تھی. شجاع الدولہ نے آپ کو لکھنؤ بلایا، وہی علم و فن سے تعارف حاصل کرنے کے لیے، علم و ادب کے لیے، شعر و شاعری کے لیے، کیونکہ لکھنؤ کے اندر شعر و شاعری کو بہت عروج ملا. بہت بڑے بڑے ادیب، بہت بڑے بڑے شعراء لکھنؤ میں جا کر بس گئے تھے. خوشحالی تھی لکھنؤ میں، لیکن آپ نہیں گئے. انہوں نے اس وقت تو جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب حالات ناسازگار ہوئے تو لکھنؤ تشریف لے گئے. لکھنؤ کے اندر یہاں پر آپ کا 6000 روپے سالانہ کا وظیفہ بنا دیا گیا، جو بہت بڑی رقم اس وقت مانی جاتی تھی. تو یہ دلائل ہیں کہ آپ بہت عمدہ قسم کے، بہت اچھے قسم کے شاعر تھے، اور اچھے شاعر کی، عمدہ شاعر کی اس وقت بہت قدر و قیمت ہوا کرتی تھی. وہاں انہوں نے اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور بدلے میں انعام و اکرام، خوب داد و تحسین پائی. نواب شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے آصف الدولہ نواب بنے، تو آپ آصف الدولہ کے دربار میں بھی وابستہ ہو گئے. آصف الدولہ نے بھی آپ کی خوب عزت کری، خوب خاطر خواہ عزت افزائی کی، اور وہیں 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا. یہ ہوا ان کی زندگانی کے حوالے سے معلومات، کس طرح ان کی زندگانی گزر بسر ہوئی. اب آتے ہیں ان کی فنی خصوصیات کے اوپر. طرز تحریر و کلام کی خاصیات کیا کیا ہیں؟ سودا بڑے باکمال اور قادر الکلام شاعر تھے. انہوں نے غزلوں میں طبع آزمائی کی اور ایک مخصوص انداز اختیار کیا جس میں درد مندی کی جگہ شوخی، سوز و گداز کی جگہ نشاط نمایاں ہے.
नया तर्ज लेकर आए थे। ये मीर तकी मीर के हम असर थे, मीर तकी मीर के दौर में थे। तो मीर की गजलों के अंदर दर्दमंदी और सोजो गुदाज मिलता था, तड़प मिलती थी, रोने का दिल करता था मीर की गजलों को देखकर। लेकिन इन्होंने एक नया दर्द लेकर आए, नया तरकीब लेकर आए। और नई तरकीब क्या थी? ये दर्दमंदी की जगह शोखी लेकर आ गए और सोजो गुदाज की जगह निशात लेकर आए अपनी गजलों के अंदर। तो आपकी गजलें खुशनुमा गजलें हो गईं। सौदा ने मर्सिया निगारी भी की और मुसद्दस की शक्ल में मर्सियों की बाकायदगी अता की। मर्सियों के अंदर सौदा ने बहुत बड़ा काम किया। मर्सिया ऐसी नज्म को कहा जाता है जो किसी की मैयत के ऊपर दुख और गम का इजहार करे। ज्यादातर सानहाए करबला के ऊपर मर्सिये लिखे गए हैं। शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मर्सिये के जरिए दिखाया गया है। तो मर्सिया जो शुरू में लिखे जा रहे थे तो उनका कोई तरीका मुकर्रर नहीं था, कोई हैयत मुकर्रर नहीं थी। जिस शायर का जैसा मन करता था वो वैसा ही मर्सिया लिख दिया करता था, उसी तर्ज में, उसी अंदाज में जो उसको चाहते थे, चाहे गजल के अंदाज में, नज्म के अंदाज में, कसीदे के अंदाज में वो मर्सिये लिखा करते थे। सौदा ने मर्सिये को एक तरकीब बख्शी। इन्होंने कहा कि मर्सिये मुसद्दस की शक्ल में लिखे जाएंगे। मुसद्दस 6 मिसरों वाली, 6 मिसरों से जहां एक बंद बने उस नज्म को मुसद्दस कहा जाता है। तो आपने मर्सिये के लिए मुसद्दस की शक्ल इख्तियार की, मुकर्रर की, और उसी के साथ ही और भी तरकीबें आपने मर्सिये के ऊपर लागू की कि इस तरह से मर्सिया लिखा जाएगा। सौदा मिजाजन कसीदे के शायर हैं। उनके मिजाज में शोखी, दर्राकी और जोश वलवला पाया जाता है, इसलिए वो कसाइद में बहुत कामयाब हुए। कसीदों के अंदर तेजी चाहिए, दर्राकी चाहिए। और कसीदे जो मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, आपको कसीदे का शायर इसीलिए मकबूल हुए कसीदे के अंदर कि आपके मिजाज में तेजी थी, दर्राकी आपके अंदर थी और हाजिर जवाबी आपके नफ्सियात में थी। तो इस वजह से आप बहुत कामयाब शायर बने। उनका मर्तबा कसीदा गोई में सबसे बुलंद है। उनके कसाइद शौकत अल्फाज, ताजगी मज़ामीन और बुलंद ख्वाली की वजह से फसाहत व बलागत के आला नमूने हैं। आज जो कसीदा आप पढ़ने जा रहे हैं वो उन्होंने नवाब गाजी उल्लाह की शान में लिखा था। ये कसीदा तो काफ़ी लंबा है, उसका कुछ हिस्सा आप पढ़ेंगे। हमारे लिए जो सबक के तौर पर एक कसीदा लिया गया है, बहुत तवील कसीदा है, बड़ा कसीदा है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर हमें फ़न से तारुफ कराने के लिए शामिल किया गया है। कुछ इसका तशबीब का हिस्सा है, कुछ गुरेज का हिस्सा है, कुछ असल जो मद्दा है उसका हिस्सा है, और आखिर में दुआ का हिस्सा भी यहाँ पर एक ले रखा है, जिससे आपको पूरे के पूरे अज़ाए तरकीबी के बारे में पता चल जाए, फ़न के बारे में पता चल जाए, कसीदा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। कसीदे के माने मैंने आपको बताए थे कि ऐसी नज़्म जिसमें किसी की तारीफ या बुराई की जाए, मद्दा या हिज्व, दोनों तरह के कसीदे कहे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर कसीदे तारीफ के अंदर लिखे जाते हैं। और तारीफ किस लिए? तारीफ इसलिए कि जिसकी तारीफ की जा रही है उससे कुछ इनाम और इकराम हासिल कर लिए जाए, उससे कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। तो इसलिए कसीदे बहुत मशहूर और मकबूल हुए। शुरुआत में जो कसीदे लिखे गए थे वो सूफियों ने लिखे हुए थे, औलिया अल्लाह ने लिखे थे। उस वक्त जो कसीदे उन्होंने लिखे थे वो कसीदे बुजुर्गान दीन की तारीफ के अंदर, अल्लाह की तारीफ के अंदर, और इस तरह की तारीफें थी जहां से कोई इनाम और इकरार नहीं था। वो सच्चे दिल से, खालिस दिल से लिखे गए कसीदे थे। बाद के जो कसीदे थे वो इनाम और इकराम के लालच में लिखे गए, और इसके बाद जब इनाम और इकराम मिलना बंद हो गया, नवाब और इस तरह के दौलतमंद शख्स खत्म हो गए, कदरदान खत्म हो गए, तो कसीदे की सिंफ को भी घुन लग गया, ये सिंफ भी खत्म हो गई। हम फन से तारुफ हासिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि फन क्या है। तो कसीदा है आपके सामने। कसीदे की जो हैयत है, लिखने की तरीका जो होता है वो गजल के अंदाज में होता है। गजल की तरह ही कसीदे का मतला होता है। मतले के अंदर दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। रदीफ और काफिया शर्त नहीं है, लेकिन शायर अपने शायर की खूबसूरती के लिए रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करता है। ये जो आपको कसीदा दिख रहा है इसके अंदर रदीफ नहीं है, लेकिन काफिया का इस्तेमाल क्या है, झपक, दस्तक, पलक। तो पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसके बाद के जो दूसरे मिसरे हैं उनमें दूसरा मिसरा मतले से हम काफिया होता है, दूसरे मिसरे में काफिया होता है, उसके पहले मिसरे के अंदर काफिया नहीं होता। जिस तरह गजल है उसी तरह ये लिखा जाता है। गजल के अंदर किसी एक मौजू के ऊपर बात नहीं होती, कई मौजूआत का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। हर शेर अलग माने रखता है।
اشعار کا آپس میں جڑاؤ نہیں ہوتا، تسلسل نہیں ہوتا، ربط نہیں ہوتا. لیکن اس قصیدے کے اندر اشعار کا آپس میں جڑاؤ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، بیانی ہوتی ہے جو پوری کی پوری آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو لے کر ہی قصیدے لکھے جاتے ہیں. غزل کے اندر لکھنے کا اس طرح سے واضح مقصد نہیں ہوتا. الگ الگ اشعار، کئی طرح کے مقصد، کئی طرح کے موضوع غزل کے اندر ملتے ہیں. تو پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد اس کا متن سمجھیں گے کہ اس کے اندر شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس طرح شروع ہوتا ہے ہمارا قصیدہ. فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک. پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں ہوں غافل، نہ لگے شوق میں جس کے کبو شائق کی پلک. بولی کہ میں ہوں غافل، نہ لگے شوق میں جس کے کبو شائق کی پلک. اور سن کے یہ مزدہ جاں بخش جو میں کھولی آنکھ، اشیا نور کی سی مجھ کو نظر آئی جھلک. آنکھیں ملکے جو دیکھوں ہوں تو ایک بادلہ پوش، سر سے لے غرق جواہر میں وہ ہے پاؤں تلک. چہرے پر ایسی ہے گرمی کہ شب و روز جس میں، چہرے پر ایسی ہے گرمی کہ شب و روز جس سے، باؤں کرتی ہی رہی دامن مژگاں کی جھپک. باؤں کرتی ہی رہی دامن مژگاں کی جھپک. زلفیں یوں بکھری ہوئی چہرے پہ مانگیں تھی دل، جس طرح ایک کھلونے پر ہٹی دو بالک. جس طرح ایک کھلونے پر ہٹی دو بالک. اور کر کے دریافت یہ مجھ سے کہا اس نے کہ مگر سما میں تیری یہ مژدہ نہیں پہنچا اب تک. آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی، کہ بصورت ہے وہ انسان بصیرت ہے ملک. یعنی نواب سلیماں فرد نام آصف جاہ، عہد میں جس کے یہ غیور بزرگ و کوچک. ہو گہربار تجھ آگے جو صحاب نیسا، برق ہو کر متبسم اسے مارے چشمک. برق ہو کے متبسم اسے مارے چشمک. حلم تیرے کے جو ہم وزن فلک سے کچھ شے، ڈال دیو ازرہ سہو خطا کوئی ملک. صدمہ ایسا کمر گاؤں زمیں کو پہنچے، شاخ ہر چند وہ کھچوائے تو نکلے نہ کسک. تجھ کو للکار کے میدان میں صفے مرداں کی، سامنے آئے تیرے کون ہے ایسا مردک. اور ختم کر اب تو دعائیا پر سودا یہ کلام، ختم کر اب تو دعائیا پر سودا یہ کلام. آئیں کرنے کو گئے آمی کرنے کو گئے باب اجابت پہ ملک. آمی کرنے کو گئے باب اجابت پر ملک. یا الہی جو یہ تیرا ہے چراغ دولت، تا عبد اس سے منور رہے قندیل فلک. تا عبد اس سے منور رہے قندیل فلک. اب ہم نے اس کی بلند خوانی کی ہے، پڑھ کر میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس کو پڑھی جائے گی. اور اب ہم اس کے معنی سمجھیں گے کہ اس کے اندر شاعر کیا پیغام دے رہے ہیں. قصیدہ ہے اور تعریف میں لکھا گیا ہے، نواب آصف جہاں کی تعریف کے اندر یہ لکھا گیا ہے، سلیمان نواب آصف جہاں. تو شاعر بیان کر رہے ہیں کہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک. فجر کے وقت کا بیان بتا رہے ہیں کہ فجر کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، نماز پڑھ کر میں لیٹا ہوا تھا اور میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک کسی نے میرے سامنے دستک دی، میرے دل پر دستک دی، کوئی میرے سامنے آ گیا. کون آ گیا؟ خوشی. دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک. در دل کا دروازہ، اور دستک کھٹکھٹانا، آواز دینا. کہ میں سو گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے سامنے ہے، اور خوشی نے میرے دل کے اوپر دستک دی تھی. جب دل پر دستک ہوئی، کچھ کھڑکا سا میرے دل پر ہوا، تو میں نے پوچھا میں نے پوچھا کون ہے؟ پوچھا میں کون ہے؟ دیکھو یہ شروعاتی دور کی اردو ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ اس انداز کے شاعر نہیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اس انداز کے شعر نہیں ہیں. اس میں آپ کو پرانے دور کی اردو ہے، اسی طریقے سے اسی انداز میں پڑھنی پڑے گی، تبھی آپ کو شاعری یہ قصیدہ سمجھ میں آئے گا. شروعاتی دور کی اردو ہے، اپنی ارتقاء کے اندر چل رہی تھی، بن رہی تھی اردو، اور کئی بدلاؤ اردو کے اندر اس وقت ہو رہے تھے. تو اس کے بعد بھی اس زبان کو اس طرح سے لیا گیا ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ کو سمجھنا اسی طریقے سے ہے. کہتے ہیں پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں ہوں غافل،
न लगे शौक में जिसके कभी कबू शाइक की पलक। तो मैंने पूछा कि भाई कौन है, किसने दस्तक दी मेरे दिल पर? तो वो बोली कि मैं हूं गाफिल। गाफिल यानी गफलत में रहने वाला, बेहोश इंसान जिसको कोई होश नहीं है, बेखबर। और दस्तक दरवाजे पर हाथ मारना कि आवाज निकालना, खटखटाना, और दर यानी दरवाजा होता ही है। तो पूछा मैंने कि भाई कौन है, कौन मेरे दिल पर दस्तक दे रहा है, कौन मुझे आवाज लगा रहा है? तो वो कहती मैं हूं गाफिल, खुशी, मैं हूं गाफिल, कि तू बेखबर है, तेरे दिल के ऊपर खुशी ने दस्तक दी है, मैं दस्तक दे रही हूं। ना लगे शौक में जिसके कबू शाइक की नजर। और मैं ऐसी चीज हूं कि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले जो हैं, उनको कभी मेरे बगैर चैन नहीं आता, मेरे बगैर सुकून नहीं आता। ना लगे शौक में जिसके, मेरे शौक में, शौक मतलब मुझे हासिल करना, ख्वाहिश, तमन्ना, रगबत, और शाइक आरजुबंद, जिसको शौक लग जाए वो शाइक। इसको आपको दोनों चीजों को समझना है, एक तरफ शौक है और एक तरफ शाइक है। शौक यानी ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, रगबत, लगाव, जुड़ाव, चाहना, ये सब शौक है। किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, किसी को नाचने गाने का शौक होता है, किसी को पढ़ने पढ़ाने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है। सबके अलग अलग शौक होते हैं। तो यहां पर ये शौक है। अब खुशी कह रही है कि मुझे देखने के शौक में, मुझे पाने के शौक में, जो मेरे शाइक हैं, जिनको मेरा शौक लगा हुआ है, उनकी पलक तक नहीं झपकती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती उनको, जिनको मेरा शौक लग जाता है। तो जिनको शौक लग जाता है वो शाइक कहलाते हैं। ख्वाहिशमंद, आरजुमंद, चाहने वाले, मानने वाले, वो सब शाइक कहलाते हैं। जुबान को आपको समझना है, तरीका आपको समझना है। तो न लगे शौक में जिसके कबू शाइक की पलक। कबू, हम इसके लिए अब कभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुरुआत में कभी के लिए कबू का इस्तेमाल किया जाता है। जो उस वक्त के शोरा हैं, मोहम्मद रफी, सौदा के आसपास के दौर के, वो सब कभी को कबू ही कहते थे। तो न लगे शौक में जिसके कबू शाइक की पलक। शाइक जिसको शौक है, जिसको खुशी का शौक है, जिसको खुशी से मोहब्बत है, तो बोले कि वो तो मेरे इस तरह से इंतजार करते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, उनको चैन नहीं आता, और तो गाफिल बना हुआ है, गफलत में है, बेखबर हो रहा है, सो रहा है। वो कहता है फजर होते ही जो लग गई मेरी आंख झपक, और तू सो गया। तो ये बहुत खूबसूरत शेर है कसीदा के दो, जिसका हमने मतलब किया, जिसका हमने मुताला किया है और खुलासा इसका किया है हमने। सुन के ये मुजदा जां बख्श जो मैं खोली आंख, अशवा नूर किसी मुझको नजर आई झलक। मुजदा यानी खुशखबरी, अच्छी खबर, ऐसी खबर जिससे दिल को सुकून मिले, दिल को इत्मीनान मिले, मुजदा कहते हैं उसको। और जां बख्श ताजगी देने वाला, जान देने वाला, सुकून देने वाला, इत्मीनान देने वाली खबर। और इसके बाद अशवा, ये रोशनी की लपक है, रोशनी की लपक है यानी नूर, शुआ से बना है। शुआ यानी किरण होती है, सूरज की किरण, रोशनी की किरण, नूर की किरण, तो वो शुआ है। और शुआ से बना है अशवा। तो अशवाए नूर, नूर की रोशनी, नूर की किरण, नूर की एक जो पतली किरण जाती है, पतली लो जाती है, उसे शुआ कहेंगे। तो अशवा नूर किसी मुझको नजर आई झलक। झलक, नजर आई झलक, हल्के से नजर आना, छोटा सा उसकी खुद दिख जाना। तो जब ये खुशखबरी सुनी, कौन सी, कि उसके घर के ऊपर, उसके दिल के ऊपर खुशी ने दस्तक दी है, तो शायर खुश हो गया। शायर खुश हो गया तो वो कहता है, सुन के ये मिज़दा जां बख्श, ये जान को सुकून देने वाली खुशखबरी सुनकर जो मैं खोली आंख, तो मैंने आंख खोल दी। मेरे दिल को सुकून देने वाली मुझे खुशखबरी सुनी और मैंने आंख खोल दी। आंख खोली तो मेरे क्या दिखा? नूर की किरण दिखी। अशवाए नूर किसी मुझको नजर आई झलक। नूर की किरण की मुझे झलक नजर आई, उसकी शुआ की मुझे हल्की सी झलक नजर आई। आंखें मलकर के जो देखूं हूं तो एक बादला पोश, सर से ले गर्क जवाहर में वो है पांव तलक। अब ये कहते हैं कि जब मैंने आंखें खोली, आंखें मलते हुए मैंने हल्के से खोल के देखा तो मुझे झलक नजर आई नूर की। अब मैंने आंखें मलते हुए देखा कि नूर की कहां से आई। जो आंख खोली तो सामने देखा कि एक खूबसूरत बादला पोश मेरे सामने खड़ी हुई है। बादला पोश, बादला होता है सोने चांदी के तार से बना हुआ लिबास, और पोश यानी पहने हुए, जिसने वो लिबास पहन रखा हुआ है। तो मेरे सामने एक सोने चांदी से जरे हुए तारों से बने हुए लिबास पहनकर एक शख्सियत खड़ी हुई है। चमकदार
जो बहुत ज्यादा झमझम करने वाले हैं, चमचम करने वाले कपड़े हैं, उनको बादला पोश कहा जाता है। तो एक बादला पहनकर मेरे सामने कोई शख्सियत खड़ी हुई है। सर से ले पूरे सर से लेकर पांव तक गर्क जवाहर में वो है पांव तलक। जवाहर यानी नगीने, जवाहरात, सोने चांदी के अंदर उसके जवाहरात में जेवर जो है उसके सर से लेकर पांव तक तरह तरह के उसने जेवर आरास्ता कर रखे हैं, अपने ऊपर सजा रखे हैं। जौहर की जमा कीमती पत्थर, जवाहरात का यहां पर जिक्र है। तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत नजर आई और उसने पूरे जवाहरात पहन रखे हैं, सोने चांदी से बने हुए उसने हार वगैरह अपने जिस्म के ऊपर सजा रखे हैं। चेहरे पर ऐसी है गर्मी कि शब रोज जिसे बाव करती ही रहे दामने मिसगां की झलक। और उसके चेहरे के ऊपर ताबी नजर आ रही है, गर्मी नजर आ रही है, चमक की वजह से उसका चेहरा गर्म हो रहा है। और इतना गर्म हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम उसकी आंखों की पलकें उसको हवा करती रहती हैं। आंखों की पलकें जो झपझपा रही हैं, यहां पर शायद मुबालगा आमेज लफ्ज में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी आंखें जो झपझपा रही हैं, इसका मतलब ऐसे है कि जैसे उसकी आंखें उसके चेहरे के ऊपर हवा कर रही हैं, ताकि उसके चेहरे को गर्मी से थोड़ी ठंडक मिल जाए। चेहरे पर ऐसी है गर्मी कि शब रोज जिसे, शब रोज रात और दिन, शब यानी रात, रोज यानी दिन, शब रोज जिसे बाव करती ही रहे, बाव यानी हवा करना, हवा करते रहना। दामने मिस्रगां की झपक, दामने मिस्रगां कहते हैं पलक को। ये जो पलकें हैं हमारी, ये मिस्र है, और मिस्र की जमा मिस्रगां। तो मिस्र की जमा है, पलक को कहते हैं। तो पलक का दामन, ये जो फैलाव है पूरा का पूरा, इसे पलक कहा गया है। तो इसको दामन कहा गया है, दामन मिस्रगां की झपक। और जो हमारी आंखें झपक रही हैं, तो इसको शायर ऐसे मुराद ले रहा है कि जैसे ये जो आंखें झपक रही हैं, असल में ये उस हस्ती के, जो शख्सियत जो खड़ी हुई है सज धज के, उसके चेहरे के ऊपर हवा कर रही है, ताकि उसके चेहरे पर ठंडक बनी रहे। उसकी खूबसूरती से उसका चेहरा ताबी के अंदर है, उसके चेहरे के ऊपर गर्मी नजर आ रही है। खूबसूरती का बयान हो रहा है यहां पर। जुल्फे यूं बिखरी हुई चेहरे पर मांगे थी दिल, और उसके चेहरे के ऊपर उसकी जुल्फे बिखरी हुई थी, और ऐसी बिखरी हुई थी जैसे दिल को मांग रही हैं। दिल उसके ऊपर डूब जाने को बेकरार हो रहा है, दिल उसके ऊपर बर्बाद होने के लिए बेकरार हो रहा है। जुल्फे उसकी लटें बिखरी हुई थी, निकली हुई थी। जिस तरह एक खिलौने पर हटी दो बालक, और जिस तरह एक खिलौने पर दो लड़के आपस में लड़ने लग जाते हैं, बालक यानी लड़के, बच्चे, हटी, हट करना, जिद पे आ जाना। एक खिलौना हो और दो एक जैसे मासूम बच्चे हो, तो वो उस खिलौने के लिए दोनों जिद करने लग जाएंगे, दोनों कहेंगे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, दोनों उसके लिए लड़ने लग जाएंगे। अब ऐसे ही इनकी जुल्फ नजर आ रही है, जो जुल्फे बिखर रही हैं, वो लग रहा है इस तरह से दिल मांग रही हैं जैसे जिद्दी बच्चे दिल के लिए, खिलौने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो यहां पर खूबसूरती का, उस खुशी की खूबसूरती का यहां पर जिक्र किया गया है। करके दरियाफ्त मुझसे कहा उसने के मगर, अब वो खुशी की तारीफ हो गई, अब उसके बाद असल मौजू की तरफ आ रहे हैं कि क्यों ये कसीदा लिखा जा रहा है, क्योंकि तारीफ करनी है। तो वो कहती है, करके दरियाफ्त ये मुझसे कहा उसने के मगर, समा में तेरी ये मिज़दा नहीं पहुंचा अब तक। मिज़दा का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, खुशखबरी, और समा यानी समाअत, सुनने की ताकत, कान, और करके दरियाफ्त यानी पूछना। तो मुझसे वो सारी बातें उसके बता दी, अब मुझसे सवाल पूछ रही है कि ये बात क्या अभी तक तेरे सुनाई में नहीं दी, क्या तुम्हारी समाअत में अभी तक ये बात नहीं आई। करके दरियाफ्त मुझसे कहा उसने के मगर, समा में तेरे ये मिज़दा नहीं पहुंचा अब तक। मिज़दा यानी खुशखबरी, और समा कान से सुनने की ताकत। तो वो खुशी जो है जिसने मुझे भी जगाया था, मुझसे पूछ रही है कि तू गाफिल है, बेखबर है, सो रहा है, क्या तुझे खुशखबरी नहीं मिली अभी तक। कौन सी खुशखबरी, वो आगे दिखाते हैं। आज उस शख्स की है सालगिरह की शादी, के बसूरत है वो इंसान, बसीरत है मलक। वो कहती है कि तेरे कान में खुशखबरी नहीं आई। मैंने कहा कौन सी खुशखबरी, तो जवाब देती है, आज उस शख्स की है सालगिरह। सालगिरह जन्मदिन, हर साल के साल पैदाइश के दिन जन्मदिन सालगिरह मनाई जाती है। तो सालगिरह की शादी यानी खुशी, शादी का मतलब होता है खुशी, शाद खुश होना, शादी खुशी। तो ये कहते हैं कि आज उस शख्स की है सालगिरह की खुशी, सालगिरह की शादी, के बसूरत, के सूरत में तो वो इंसान की तरह है, और सीरत यानी वो अपने अंदर दिल से वो
फरिश्ता सिफत है, फरिश्ते जैसा है, इतना दिल साफ है उसका जैसे वो फरिश्ता, और सूरत ऐसे है जैसे वो इंसान की तरह नजर आता है। तो ये बादशाह की, उस नवाब की तारीफ की जा रही है। तो उसकी सालगिरह है, सालगिरह के ऊपर ये कसीदा लिखा गया है। आज उस शख्स की है सालगिरह की शादी, कि बसूरत है वो इंसान, बसीरत है वो मलक। मलक यानी फरिश्ता। अब नाम लिया, यानी नवाब सुलेमा, फर्द नाम आसिफ जहां, अहद में जिसके ये गयूर बुजुर्ग कूचक। यानी नवाब सुलेमा, फर्द नाम आसिफ जहां, ये उनका नाम है नवाब सुलेमा, और आसिफ जहां के नाम से वो जाने जाते थे। आसिफ जहां की सालगिरह है और उनकी सालगिरह की खुशी के अंदर ये कसीदा लिखा गया। देखिए कितनी खूबसूरती से वो असल मौजू की तरफ आ रहे हैं, असल बात की तरफ आ रहे हैं। तो नवाब साहब का ये सालगिरह है, खुशी का मौका है। अहद यानी उनका दौर, अहद का मतलब होता है वक्त, तो यहां पर उनका जो हुकूमत है उसकी बात हो रही है, उनकी हुकूमत की बात हो रही है, जमाना दौर, लेकिन यहां पर हुकूमत की बात हो रही है। अहद में जिसके, यानी जिनकी हुकूमत में ये अभी हाकिम है, ये राज कर रहे हैं, इनका शासन है, तो इनके शासन के अंदर गयूर, ये गयूर यानी गैरतमंद, ये गयूर, गयूर किसे कहेंगे? जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, गैरतमंद हो, शर्मा जाए जरा सी बात पर, कोई किसी उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठा पाए, उस शख्स को गयूर शख्स कहेंगे। तो ये गयूर बुजुर्गों कूचक, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े, और कूचक यानी बच्चे छोटे कोताह। तो ये कह रहे हैं कि उन नवाब साहब की सालगिरह है जिनका अहद ऐसा है कि जिसमें सब खुश हैं, इन्होंने सबको इतना सरफराज किया है, इतना नवाजा है कि सब गयूर बन गए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, कूचक हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का हो, सबको इतना नवाज दिया है, इतना दे दिया है कि अब कोई वहां इनके दौर में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, सब गयूर बन गए हैं। तो हाथ ना फैलाने वाला गयूर कहलाता है। तो यहां पर उनके दौर की, उनके शासन की, उनके अहद की, उनकी हुकूमत की तारीफ हो रही है, और बता रहे हैं कि इतनी अच्छी हुकूमत है कि अब यहां पर कोई गरीब नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, कोई हाथ फैलाने वाला नहीं है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कूचक हो, वो सब खुद मुख्तार हैं, सब अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, सबको इन्होंने खूब नवाजा है, खूब दिया है। तो नवाब की, आसिफ जहां की यहां पर तारीफ कर रहे हैं। हो गुहर बार तुझ आगे जो सिहाबे नीसा, हो गुहर बार तुझ आगे जो सिहाबे नीसा, बर्क होकर मुतबस्सुम उसे मारे चश्मक, बर्क होकर मुतबस्सुम उसे मारे चश्मक। सिहाब यानी बादल होता है, और नीसा यानी बैसाख का मौसम। बर्क यानी बिजली, और मुतबस्सुम यानी मुस्कुराने वाला, और चश्मक का मतलब है आंख का इशारा, जो इशारों के अंदर आंख मार देते हैं या आंख झपका देते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए आंख का इशारा कर देते हैं, वो आंख का इशारा चश्मक कहलाता है। इस शेर का मतलब समझिए, हो गुहरबार, गुहरबार यानी मोती बरसाने वाला, और सिहाबे नीसा, सिहाबे नीसा उस बारिश को कहते हैं जिसका पानी जब सीपी के अंदर जाता है तो सीपी के अंदर मोती बन जाता है। मोती बरसाने वाली बरसात की यहां पर बात हो रही है, पानी बरसाने वाले बादल की तेजी की यहां पर बात हो रही है। गुहरबार मोती बरसाने वाला, तो वो बादल जो है, जो बारिश करता है तो उसके पानी से मोती बन जाते हैं, यानी खूब मिल रहा है उसके, तो मोती बन जाते हैं। जब वो बादल बरसता है मोती बरसाने वाला, तो यहां पर कह रहे हैं कि बर्क होकर मुतबस्सुम उसे मारे चश्मक। तो बर्क यानी बिजली, बिजली मुतबस्सुम मुस्कुराने लगती है, बिजली मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराकर उसे आंख मार रही है, यानी उसको छेड़ रही है बादल को, बारिश करने वाले बादल को। क्यों? क्योंकि यहां पर शायर का इशारा है, शायर कह रहा है कि ये जो मोती दे रहे हैं इससे कई गुना मोती हमारे नवाब साहब लोगों को बांट चुके हैं। ये बारिश से जो मोती आ रहे हैं, बारिश से जो मोती बनेंगे वो तो बहुत कम रहेंगे, हमारे नवाब साहब का तो पूरा खजाना लुटा चुके हैं, लोगों को इतना कुछ दे चुके हैं कि अब ये जो दे रहा है बादल से जो बारिश हो रही है, गुहरबार यानी मोतियों की बारिश, मोतियों की बारिश भी हो जाए तब भी वो कम नजर आएगी। नवाब साहब ने इतना लोगों को बख्श दिया है। मुबालगा आ रहा है, आमेज बात हो रही है, बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, यहां पर नवाब साहब की तारीफ की जा रही है। तो हो बर्क होकर मुतबस्सुम, शेर की खूबसूरती देखिए आप, मुतबस्सुम मुस्कुराकर, हंसी के साथ, कौन? बर्क बिजली, बिजली जो कड़क रही है, यहां पर शायर कह रहे हैं कि कड़क नहीं रही बल्कि वो मुस्कुरा रही है और बादल का मजाक उड़ा रही है, उसको आंख मार रही है चश्मक, उसको आंख से इशारे कर रही है कि तू जो बरसात कर रहा है, तू जो मोती बरसा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है,
हमारे आसिफ जान है तो इससे ज्यादा मोती लोगों को ऐसे ही बांट दिए हैं, बगैर कुछ मांगे बगैर कुछ करे उनको दे दिए हैं। तो यहां पर आसिफ जा की तारीफ हो रही है। आगे आते हैं, हिल्म तेरे को जो हम वजन फलक से कुछ शे, हिल्म तेरे के जो हम वजन फलक से कुछ शे, डाल देवे जरा सहवे खता कोई मलक। अब यहां पर हिल्म की बात हो रही है, हिलम की बात हो रही है। हिलम क्या है? बर्दबारी। बर्दबारी यानी बर्दाश्त करने की कुव्वत, संजीदगी, मतानत। कितना इंसान बर्दाश्त करेगा वो उसका हिल्म कहलाता है। तो यहां पर जब बर्दाश्त करने की कुव्वत की बात हुई, बर्दाश्त करने की ताकत की बात हुई, तो ये कहना है कि हमारे नवाब साहब से ज्यादा बर्दाश्त कोई कर ही नहीं सकता। जितना नवाब हमारे आसिफ जहां बर्दाश्त करते हैं, इतना किसी में कुव्वत नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। अब फिर बताएंगे मुबालगा आमेज लफ्जों में कि किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं हिल्म तेरे को, यानी जो बर्दाश्त करने की ताकत है नवाब साहब की, उसकी बराबरी किससे कर रहे हैं? जो हम वजन, उसके बराबर। किसके बराबर? बर्दाश्त करने की, जितना नवाब साहब ने बर्दाश्त किया है, अगर उसके बराबर की कोई चीज, जो हम वजन फलक से कुछ शय, शय यानी चीज, फलक से आसमानों से कुछ शय, डाल देवे अजरहा, ये जरा है लेकिन इसको हम अजरहा पढ़ेंगे कि अजरहा है ये खुद ब खुद। डाल देवे अजरहा सहवे खता, सहवे खता गलती से या भूल से, सहवे भूल से होता है, सहवे भूल, और खता यानी गलती, खता यानी गलती, फलक यानी आसमान, हम वजन बराबर वजन का। सारी चीजें आप जब समझ लेंगे तो आपको शेर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो अजरा खुद ब खुद या गलती से कोई हो जाए चीज, तो वो चीज के लिए अजरा मुताबिक बराह रास्त का इस्तेमाल किया जाता है। अजरा सहव खता कोई मलक, मलक यानी फरिश्ता। अब इस शेर को मैं पूरा पूरा आपके सामने पेश करता हूं, आप देखिए इसको। हिलम तेरे को, यानी तेरे जो बर्दाश्त करने की कुव्वत है, अगर उस कुव्वत के बराबर का वजन कोई फरिश्ता आसमान से गिरा दे, गलती से या भूल करके कैसे भी उसको गिरा दे, तो क्या होगा? सदमा ऐसा कमर गांव जमी को पहुंचे, कमरे गांव जमी को पहुंचे, शाखे हरचंद वो खिंचवाए तो निकले न कसक। अब यहां पर फिर इशारा किया है, सदमा ऐसा कमर, कमर यानी कमर जो हमारी पीठ होती है, कमर है। गावे जमी, गावे जमी, गावे जमी इस्तेमाल किया है एक गाय के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सींग के ऊपर हमारी जमीन टिकी हुई है। कई लोगों का ख्याल है, हालांकि ये हकीकत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। गावे जमी यहां भी दे रखा है, वो बेल जिसकी सींग पर जमीन टिकी हुई बताई जाती है। फर्जी ख्याल है या जो भी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कई ख्यालात में, कई जगह के ऊपर, कि हमारी जो जमीन है, दुनिया है, एक गाय के सींग के ऊपर टिकी हुई है। एक गाय है बहुत बड़ी और उसके सींग के ऊपर हमारी दुनिया टिकी हुई है। तो ये कह रहे हैं, अब उस जमीन पे जो टिकी हुई गाय खड़ी हुई है नीचे, पता नहीं कहां खड़ी हुई है वो नहीं बताया, लेकिन उसका जिक्र बता दिया कि उसके सींग के ऊपर जमीन टिकी हुई है। इतना वजन उसका सींग बर्दाश्त कर रहा है। अब हमारा जो नवाब साहब है, इनके बर्दाश्त करने की कुव्वत यह है कि अगर इसके बराबर का वजन, उनके बर्दाश्त करने की ताकत के बराबर, कुव्वत के बराबर का वजन आसमान से गलती से गिर पड़े जमीन की तरफ, कोई फरिश्ता गलती से या भूल से गिरा दे, तो वो कहां आएगा? उस गाय की जो जमीन को सींग पे लिए हुए खड़ी हुई है, उसकी कमर के ऊपर। तो उसकी कमर के ऊपर ये लग जाएगा, तो वो शाखे हर चंद वो खिंचवाए तो निकले न कसक। तो उसकी कमर में ऐसा बल पड़ेगा कि वो उन कमर को खिंचवाती रहेगी, खूब मालिश करवाती रहेगी, तब भी उसके बल नहीं निकलेगा, तब भी उसकी कमर में आई हुई कसक नहीं निकलेगी। शाखे खिंचवाना, शाखे खिंचवाना जब हम मालिश करवाते हैं, जब हमारे कोई खिंचाव वगैरह आ जाता है, कोई बल आ जाता है हमारे जिस्म के अंदर, कुछ और ऐठन वगैरह आ जाती है, तो हम तेल से या दवा वगैरह से मालिश करवाते हैं, मसलवाते हैं, जिससे हमें थोड़ा आराम मिल जाता है। तो उससे होता क्या है, हमारी नसें खिंच जाती हैं, नसें साफ हो जाती हैं। तो जो नसें खिंचना है वो शाखे खिंचना यहां पर कहा गया है कि वो गाय, उसकी कमर ऊपर से वजन गिरने की वजह से टेढ़ी हो गई, अब वो गाय किसी से सहलवाएगी, अपनी नसें खिंचवाएगी, तो शाखे खिंचवाएगी, तब भी उसको आराम नहीं मिलने वाला। बहुत मुबालगा आराई करके, बढ़ा चढ़ा के बातों को यहां पर पेश किया है। पूरे जो दो अशार हैं, इनका दोनों का मतलब यह है कि जो नवाब साहब की बर्दाश्त करने की कुव्वत है, जो नवाब साहब सहते हैं, जो नवाब साहब बर्दाश्त करते हैं,
उतना वजन की चीज अगर आसमान से मलक फरिश्ते जमीन पे गिरा दें और जो जमीन को संभाले हुए जो गाय है उसकी कमर पे चली जाए तो वो भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी जमीन के वजन से ज्यादा वजन उनकी कमर पे आया हुआ बताया जा रहा है। खिंचवाले तो न निकले कसक। तुझको ललकार के मैदान में सफे मर्दा की, तुझको ललकार के मैदान में सफे मर्दा की, सामने आए तेरे कौन है ऐसा मर्दक। अब यहां पर बहादुरी की, शुजाअत की दाद दी जा रही है, दिलेरी बताई जा रही है कि जो हमारे आसिफ साहब हैं वो बहुत दिलेर भी हैं, बहुत निडर भी हैं, बहुत हिम्मत वाले भी हैं। उनकी हिम्मत की यह है कि ऐसा कौन है जो उनको ललकार के मैदान के सफे मर्दा में आ जाए। सफे मर्दा आदमियों की सफ के अंदर, सफ यानी लाइन में। ऐसा कोई नहीं है जो उनको ललकार सकता है, जो उनको लड़ने के लिए तैयार करने के लिए सामने बुला सकता है। सामने आए तेरे कौन है ऐसा मर्दक। ऐसा मर्दक यानी ऐसा मर्द कौन है। मर्द के आगे काफ का इजाफा करके यहां पर मर्दक बनाया गया है। कम हिम्मत, जिसमें कम हिम्मत हो वो मर्दक है। और मर्दा मर्द की जमा, बहादुर जवान। तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इनको ललकार के इनके सामने लड़ाई के लिए आ जाए। सबसे बहादुर है, सबको ये हरा कर दूर कर देंगे। अब इसके बाद कुछ अशार यहां पर लिए गए हैं, सारे अशार नहीं लिए गए, बीच बीच में से बहुत सारे अशार गायब हैं। कोशिश ये करनी है आपको कि आपको अगर कसीदा मिल जाता है ये तो पूरा कसीदा आप पढ़ें, उस कसीदे को आप समझें और उसके जो लुत्फ हैं वो भी आप उठाएं। अब यहां पर आखिरी शेर कसीदा का दिया गया है जो दुआइया जुमला इस्तेमाल किया जाता है, दुआएं दी जाती हैं अपने ममदूह को जिसके लिए कसीदा लिखा गया है। कहते हैं खत्म कर अब तो दुआइया पर सौदा ये कलाम, खत्म कर अब तो दुआइया पर सौदा ये कलाम, आमी करने को गए बाब इजाबत पर मुलक, या इलाही जो ये तेरा है चरागे दौलत, ता अब्द उससे मुनव्वर रहे कंदील फलक, ता अब्द इससे मुनव्वर रहे कंदील फलक। तो अब यहां पर सौदा अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं, यहां पर तखल्लुस का इस्तेमाल कर रहे हैं सौदा अपने, और कहते हैं खत्म कर अब तो दुआइया पर सौदा ये कलाम। सौदा जो तू तारीफें कर रहा है बादशाह की, नवाब की, जो तरह तरह से शुजाअत बयान कर रहा है, बहादुरी के किस्से सुना रहा है, अब ये कलाम यहीं पर खत्म कर दे। अब दुआएं शुरू कर दे, दुआइया शुरू कर दे। दुआइया दुआएं करने वाला, दुआ गो। तो अब तू दुआ करना शुरू कर दे और दुआएं मांगना शुरू कर दे। आमी करने को गए बाब इजाबत पर फलक मलक। और जब सौदा ने दुआएं की तो वो कहते हैं कि उनकी दुआओं को आमीन करने के लिए यानी कबूल करवाने के लिए फलक के ऊपर मलक जो है, फलक के ऊपर आसमान पे फरिश्ते बाब इजाबत पर लेके गए हैं। बाब इजाबत कबूलियत का दरवाजा, वो दरवाजा जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। फलक का वो आखिर दरवाजा कि अगर वहां पर दुआएं चली जाएं तो फिर दुआएं कबूल हो सकती हैं। तो सौदा यहां पर इशारा कर रहे हैं कि मैं तो बाब इजाबत पे नहीं जा सकता, लेकिन फरिश्ते मेरी दुआएं लेकर वहां पहुंच गए हैं और वो आमीन कह रहे हैं। आमीन करने को गए बाब इजाबत पर मलक, फरिश्ते वहां पर मेरी दुआ लेकर पहुंच गए हैं। जो मैंने ममदूह के लिए, मेरे नवाब साहब के लिए दुआएं दी हैं वो दुआएं अब कबूल होने वाली हैं। या इलाही जो ये तेरा है चरागे दौलत। और या इलाही अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या परवरदिगार, परवरदिगार तेरा जो चरागे दौलत है, दौलत का चिराग है, ये नवाब साहब की तारीफ हो रही है। ता अब्द हमेशा, ता अब्द, ता अब्द, अब्द यानी हमेशा रहने वाला और ता यानी उसके साथ। तो ता अब्द उससे मुनव्वर, मुनव्वर यानी चमकदार, चमकता रहे, जलता रहे, रोशन रहे हमेशा। किंदील फलक, फलक की रोशनदान, फलक की जो रोशनाई होती है, किंदील मतलब जो लालटेन होता है, जो लैंप होता है, उसे किंदील कहा जाता है। तो फलक की जो किंदीलें लगी हुई हैं वो कहते हैं कि उससे हमेशा के लिए वो मुनव्वर रहे, हमेशा के लिए चमकता रहे। तो उनको हमेशा जिंदा रहने की, हमेशा मशहूर रहने की, रोशन रहने की ये दुआएं दे रहे हैं। इस तरह से यहां पर ये हमारा कसीदा मुकम्मल हो जाता है। अब जो हमारी किताब के अंदर इसकी तशरीह दी गई है, हम उसका मुताला करेंगे, समझेंगे कि मतन के जरिए शायर क्या पैगाम देना चाहते हैं। एक बार और देख लें इसको। फज्र होते जो गई आज मेरी आंख झपक, दी वही आके खुशी ने दरे दिल पर दस्तक, पूछा मैं कौन हूं, कौन है, बोली कि मैं हूं गाफिल, न लगे शौक में जिसके कभी शाइक की पलक। तो यह अशार तशबीब का है। तशबीब कसीदे के पहले हिस्से को कहा जाता है। पहले हिस्से को जहां पर शायर हुस्न और इश्क की बातें करता है, नेचर की तारीफें करता है
اور ऐसी बातें करता है जिसका असल मौजू से मतलब नहीं होता, तो वो तशबीब या नसीब या तुमहीब चीज कहलाती है। शायर ने निहायत खूबसूरत और नया अंदाज इख्तियार किया है। कसीदे की शुरुआत वो इस तरह करता है कि फज्र के वक्त जब वो हल्की नींद में था, उसने किसी को अपने बहुत करीब महसूस किया। उसने आंखें बंद किए हुए पूछा कि तुम कौन? उसने जवाब दिया, बड़ी हैरत की बात है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं वो चीज हूं जिसकी तलब लोगों को बेचैन रखती है। मेरी चाहत किसी को सोने नहीं देती। मेरी ख्वाहिश हर शख्स के दिल में होती है। मेरा नाम खुशी है। वो खुशी ने दस्तक दी थी इनके दिल के ऊपर कि मैं खुशी हूं और तुम गाफिल क्यों हो रहे हो, सो क्यों रहे हो, ये सोने का वक्त नहीं है, उठ जाओ और चलो नवाब की तारीफें करते हैं, नवाब के बारे में बातें करते हैं। सुन के ये मुजदा जा बख्श जो मैं खोली आंख, अशवा नूर की सी मुझको नजर आई झलक, आंखें मल कर के जो देखूं हूं तो एक बादला पोश, सर से ले गर्क जवाहर में वो है पांव तलक। और ये अशार भी तशबीब के हैं, यानी उसी शेर का अगला हिस्सा है ये। शायर कहता है कि जब मैंने ये खुशखबरी सुनी कि खुशी मेरे पास खुद चलकर आई है, जिसके लिए लोग रातों को जागते हैं, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, भागदौड़ करते हैं, वो खुशी खुद मेरे पास चलकर आ गई है। तो मैंने फौरन आंखें खोल दी तो मुझे रोशनी की एक लपक नजर आई। मैंने आंखें मलकर गौर से उस लपक को देखा तो खुशी को इंसान के रूप में पाया। इंसानी शक्ल लेकर खुशी वहां पर मौजूद थी। वो सोने और चांदी के तारों से बने हुए कपड़े पहने हुए थी, यानी जर्क बर्क पोशाक से वो पोशाक पहने हुए थी और सर से पांव तक हीरे मोतियों और जवाहरात से सजी हुई थी। चूंकि शायर ने खुशी को इंसानी रूप दिया है, चुनांचे उस मुनासिबत से उसके जिस्म, पहनावे और जेवरात का जिक्र किया है। और उसके बाद और अशार में भी इनका जिक्र किया है, खुशी की खूबसूरती का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अशार दिए हैं इसलिए वो मुकम्मल यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि अगर कहीं से ये कसीदा आपको मिल जाता है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो जिक्र मिल जाएगा। चेहरे पर ऐसी है गर्मी कि शबो रोज जिसे बाव करती ही रहे दामने मिसगां की झपक, जुल्फे यूं बिखरी हुई चेहरे पर मांगे थी दिल, जिस तरह एक खिलौने पर हटे दो बालक। और ये अशार भी तशबीब के सिलसिले में ही है। शायर खुशी का सरापा यूं बयान कर रहा है कि उसका चेहरा तमतमा रहा है और पलकें उसकी तमतमाहट को कम करने के लिए पंखा जलती रहती हैं। जो पलकें झपक रही हैं, शायर को हिलती हुई पलकें नजर आ रही हैं, खुशी का चेहरा लाल नजर आ रहा है खूबसूरती से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चेहरा तमतमा रहा है, जल रहा है, गर्म हो रहा है और वो पलकें उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं। उसके चेहरे पर बालों की लटें उस तरह बिखरी हुई हैं कि बेख्तियार दिल उसकी तरफ खिंच रहा है और उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है और हर दिल से उसे पाने के लिए मचल रहा है। हर कोई शख्स खुशी को पाने के लिए दौड़ा चला आता है, उसके पीछे भागता है। जिस तरह दो बच्चे एक ही खिलौने के लिए जिद करते हैं और अड़ जाते हैं कि उसे लेकर ही रहेंगे, उसके चेहरे के दोनों तरफ जुल्फें इसी तरह चिमटी हुई थी जैसे एक खिलौने को पाने के लिए दो लड़के जिद करते हैं। तो खूबसूरती बता रहे हैं यहाँ पर खुशी की कि जुल्फें इस तरह से मालूम हो रही थी कि जैसे दो लड़के एक खिलौने को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। करके दरियाफ्त ये मुझसे कहा उसने कि मगर समा में तेरी ये मिजदा नहीं पहुंचा अब तक। आज इस शख्स की है सालगिरह की शादी के बसूरत है वो इंसान बसीरत है मलक, यानी नवाब सुलेमा फर्द नाम आसिफ जहा अहद में जिसके ये गयूर बुजुर्ग कोचक। और ये अशार गुरेज के हैं। तशबीब के बाद असल मुद्दे पर जाने से पहले गुरेज के शेर कहे जाते हैं। जो हमारा सबक नंबर 23 है, यहाँ पर अज्जाए तरकीबी बताए गए हैं, आपको तशबीब और गुरेज के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर गुरेज का अशार है, आप इसको समझ लें, देख लें। 3 अशार यहाँ पर लिए गए हैं और तीनों ये गुरेज के अशार हैं, यानी वो अशार जिनके जरिए शायर कसीदे में तशबीब से असल मुद्दे की तरफ आता है। असल मुद्दा क्या है? तारीफ करना। यहाँ पर नवाब साहब की तारीफ के ऊपर आ रहे हैं। तो अब नवाब साहब की बात होनी शुरू हो गई और उसके बाद फिर तारीफें शुरू होंगी नवाब साहब की। अपने ममदू की तारीफ की तरफ मुतवज्जह होता है। शायर कहता है कि खुशी ने मुझसे कहा है कि क्या खुशखबरी अभी तक तुझको नहीं मिली कि आज एक अजीम शख्स की सालगिरह है। वो शख्स सूरत से इंसान है और सीरत से फरिश्ता सिफ्त है। यहाँ पर नवाब साहब की बात हो रही है। वो बहुत नेक दिल और शरीफ इंसान है। उनका नाम नवाब सुलेमान आसिफ जाह है। उनकी खूबियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बहुत सखी और फराख दिल है। उसने अपनी रियाया को माला माल कर दिया।
इसलिए उसके अहद में किसी को हाथ फैलाने और सवाल करने की जरूरत नहीं, चुनांचे सभी गैरतमंद हो गए। यानी सबको इतना दे दिया कि अब कोई हाथ नहीं फैला रहा, कोई मांग नहीं रहा। तो जो हाथ नहीं फैलाता वो गैरतमंद होता है, जो हाथ फैला देता है बात बात के ऊपर उसको बेगैरत कहा जाता है। तो अब यहां पर बेगैरत कोई नहीं रहा, सबको इतना नवाज दिया है नवाब साहब ने, इतना बख्श दिया है सबको कि सब अमीर हो गए, सब माला माल हो गए हैं। अब जब नवाब साहब ने खूब दौलत दे दी, खूब चीजें बख्श दी, तो वो किसी दूसरे के आगे हाथ क्यों फैलाएंगे? सब गयूर हो गए, सब गैरतमंद हो गए। हो गुहरबार तुझ आगे जो सिहाबे नीसा, बर्क होकर मुतबस्सुम उसे मारे चश्मक। अब शायर यहां पर असल मौजू की तरफ आता है, यानी कि मद्दाह, तारीफ। अपने ममदूह की तारीफ शुरू करता है। यह कसीदे का सबसे अहम हिस्सा होता है और यही वो हिस्सा होता है जिसके लिए पूरा का पूरा कसीदा लिखा जा रहा है, क्योंकि यही बातें कहना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, और तारीफ के लिए ही वो सारी तजबीब और गुरेज वगैरह वाली बातें होती हैं। तो ये असल हिस्सा अब शुरू हुआ है। शायर कहता है, मेरा ममदू बहुत सखी और फयाज है। जब बारिश होती है तो बिजली कड़क कर उसका मजाक उड़ाती है और चमक कर कहती है कि तू भला मेरे महबूब का क्या मुकाबला करेगी, वो तो दरिया दिल है। मुबालगा से काम लेते हुए शायर ने ममदूह की सखावत की तारीफ की है। वो कहता है कि बारिश भी इतनी तेजी से नहीं बरस सकती जितनी तेजी से वो दौलत बांटता है। मुबालगा कहते हैं ऐसी बात जो शेर में आ जाए हमारे, जिसे अक्ल तस्लीम ना करे, माने नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, वो मुबालगा कहलाते हैं, मुबालगा आ रही है। तो यहां पर शायर अपने ममदूह की तारीफ कर रहे हैं, नवाब साहब की तारीफ कर रहे हैं कि वो इतने बड़े सखी हैं और इतनी तेजी से बांटते हैं कि बर्क बारिश का मजाक उड़ा रही है कि जितनी तेज तू हो रही है, जितने मोती तू बरसा रही है, तुझसे ज्यादा तेजी तो नवाब साहब में है, वो लोगों को अपनी दौलत लुटा रहे हैं। सिहाब नीसा की मुनासिबत से शायर ने गौहर बार का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आम रिवायत है कि नीसा का एक कतरा जब सीप के अंदर गिरता है तो वो मोती बन जाता है। सिहाब नीसा वो ऐसे बारिश को कहा जाता है जिसके पानी से सीप के अंदर चला जाए तो वो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। ये भी उसके लिए बात कही गई है। हिल्म तेरे के जो हम वजन फलक से कुछ शय, डाल देओ जर अजरह सहब खता कोई मलक, सदमा ऐसा कमर गांव जमी को पहुंचे, शाख हर चंद वो खिंचवाए तो निकले न कसक। अब यहाँ पर शायर इन शायर में अपने ममदूह की बर्दबारी की तारीफ कर रहा है। बर्दबारी बर्दाश्त करने की कुव्वत, संजीदगी। कहता है कि वो निहायत संजीदा और बावकार शख्स है। एक आम रिवायत बयान की जाती है कि किसी गाय के सींग पर ये जमीन टिकी हुई है, ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग। अगर ममदूह की बर्दबारी के हम वजन कोई चीज आसमान से जमीन पर गिराई जाए तो उसे गाय के कमर बोझिल हो जाएगी और वो उसे सीधी कराने की लाख कोशिशें करे मगर वो सीधी ना होगी और उसकी तकलीफ में कोई कमी ना होगी। यानी अब देखिए वजन, कितने वजन की बात हो रही है कि वो गाय इतनी ताकतवर है कि जमीन का बोझ उसने एक सींग के ऊपर अपने सह रखा है, लेकिन अगर उसकी कमर के ऊपर हमारे नवाब साहब की बर्दाश्त करने की कुव्वत जिसका बोझ गिर जाए तो उसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी, फिर वो कमर को सीधी नहीं कर पाएगी। लाख कोशिश कर पाए लेकिन वो कमर को सीधी नहीं कर पाएगी। तुझको ललकार के मैदान में सफे मर्दा की, सामने आए तेरे कौन है ऐसा मर्दक। और यहां पर अब बहादुरी की तारीफ हो रही है, शुजाअत और दिलेरी दिखाई जा रही है। इस शेर में शायर अपने ममदूह की बहादुरी की तारीफ करता है। वो बहुत बहादुर, जवां मर्द, निडर है। जब वो मैदान जंग में आगे निकलता है तो सब खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं। किसी मर्द की मजाल नहीं कि वो मुकाबला करने के लिए सामने आए, वो मुकाबले से पहले ही डर जाते हैं। तो इस तरह से बहादुरी का जिक्र कर दिया कि हमारे नवाब साहब बहुत बहादुर भी हैं, बहुत बड़े सखी भी हैं। खत्म कर अब तो दुआइया पर सौदा ये कलाम, आमी करने को गए बाब इजाबत पर मलक। या इलाही जो ये तेरा है चिराग दौलत, ता अब्द उससे मुनव्वर रहे किंदील फलक। अब ये आखिरी कसीदा है और दुआइया यहां पर कलाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दुआ या हुस्न तलब इसी को कहते हैं। यहां पर या तो दुआ की जाती है या फिर शायर जो चाहता है, जिसकी तारीफ कर रहा है ममदूह की, उससे कुछ इनाम चाहता है, कुछ खास उसने तवज्जो कर रखी कि मैं इस चीज को हासिल करूंगा, तो उसका जिक्र भी यहां पर इन अशार में करता है। यहां पर सिर्फ दुआइया कलमात लिखे गए हैं। यह कसीदे का आखिरी हिस्सा है। इसमें शायर
दुआइया कलमात पर अपनी बात खत्म कर रहा है। शायर कहता है कि हमने अपने ममदूह के लिए जो दुआएं मांगी हैं उस पर आमीन कहने के लिए फरिश्ते कबूलियत के दरवाजे पर चले गए हैं, अब तो वो दुआ कबूल होगी ही होगी। चूंकि शायर खुद वहां तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए फरिश्तों को इस दुआओं के खुदा की हुजूर कबूलियत के लिए ले गए हैं, ताकि शायर का ममदूह हमेशा खुश खुर्रम रहे और लोगों को मालामाल करता रहे, उसकी इज्जत और दौलत कायम रहे। इस तरह से हमारा ये कसीदा मुकम्मल हो जाता है। कसीदे की सिर्फ के बारे में आपको बताया था मैंने कि आपको पढ़ना है, समझना है। कसीदा उर्दू अदब की वो सिन्फ है जो किसी की तारीफ या मजम्मत के लिए लिखा जाता है। बुराई भी होती है यहाँ पर और तारीफें भी होती हैं। ज्यादातर तारीफ के लिए कसीदे का इस्तेमाल किया जाता है, और तारीफें भी वक्त के हाकिमों की, बादशाहों की, निज़ामों की, दौलतमंद शख्सों की जाती थी कि जिनसे कुछ इनाम और इकरामात हासिल किए जा सके। ये ऐसा ही एक खूबसूरत कसीदा है जो तारीफ में लिखा गया है और फन से मुतारुफ आपको यहाँ पर कराया गया है। फन की बारीकी आपने देखी, बहुत खूबसूरती से लिखा गया ये कसीदा है। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। इजाजत दीजिए, अलविदा।